Okay, good morning everyone. So now we have completed non-Mendelian inheritance. So I hope you are quite clear with what is the difference between any Mendelian or any non-Mendelian inheritance. Non-Mendelian inheritances और भी हैं जैसे कि एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, बहुत सारे हैं. ठीक है, बट in our syllabus we are having only these, that is pleiotropy, polygenic inheritance, then incomplete dominance, codominance and multiple allelism. ठीक है. So our next topic is the concept of dominance. Now what does this mean? We have already done the law of dominance, but what is the thing or what is the reason that a dominant gene is expressing and a recessive gene is not expressing? ठीक है, तो इस केस में वी आर टेकिंग एन assumption कि in heterozygotes there are dominant as well as recessive alleles. अब दोनों डोमिनेंट जीन हैं और दोनों रिसेसिव जीन्स हैं तो वो तो एक्सप्रेस करेंगे ही बिकॉज दे आर होमोजाइगस. बट व्हाट इज़ देयर इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन दैट डोमिनेंट इज़ एक्सप्रेसिंग एंड रिसेसिव इज़ नॉट. ठीक है, तो लेट्स टेक it like this way, that we are taking dominant genes, these are the normal genes, unmodified or functioning genes or alleles. So ये जो normal genes हैं they are producing a normal enzyme and these enzymes are required for certain functions. Okay, ये बात हमेशा याद रखनी है that every gene is producing a product and the product which is produced by the gene is always is a protein, and that protein can function in any ways, can be enzyme, can be a functional protein, can be a structural protein, कुछ भी. ठीक है, तो जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं या डोमिनेंट अलील्स जिसको आप बोल सकते हो, सो दीज आर द नॉर्मल जीन्स. फाइन, सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ आई कलर हेयर. ठीक है, नाउ ब्लैक कलर आई एंड ब्राउन आई कलर is dominant over any other color, maybe blue, green, कुछ भी. ठीक है, so we are taking example capital B and small b. no doubt यहाँ पर दोनों में B ही यूज़ होगा क्योंकि B for blue and B for black और brown. ठीक है, वो बाई चांस की बात है, but otherwise whenever you are using a symbol for a dominant gene you have to choose the first letter of the dominant character. Fine. Okay, so why capital B, that is producing black या brown color in the iris, is dominant over blue color या green color या grey color, जो भी आएगा color. So we are taking that the dominant gene is a normal and जो recessive gene है somehow we are considering them as modified alleles. ठीक है, ये as it is ही है बुक में दिया हुआ. So understand that normal alleles we are taking them as dominant genes and जो modified alleles हैं they are the recessive one. Now why recessive alleles? They are not able to produce the product similar to that of the dominant gene, so there can be three options. First, this modified allele या तो ये कोई नॉर्मल ही फिनोटाइप या एंजाइम प्रोड्यूस करता है या ये कुछ लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है. सो इन द फर्स्ट कंडीशन वी आर टेकिंग assuming that modified alleles either they are producing the enzyme which is less efficient as compared to the enzyme produced by normal, that is dominant allele. ठीक है, fine. Then second, this modified allele it is producing something non-functional enzymes. ठीक है, so it is producing a non-functional enzyme. So if enzyme is not functional then how it is going to express? And the last reason can be that it is producing no enzyme. ठीक, so ये तीन categories बन गई. या तो modified allele is becoming recessive because it is not producing any enzyme, or it is producing a less effective enzyme, or
sorry, it is producing a non-functional enzyme. Enzyme is produced but no function. यहाँ एंजाइम बन ही नहीं रहा है, यहाँ एंजाइम बनता है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, वो यूज़ में नहीं आ रहा है. यहाँ वो यूज़ में भी आ रहा है बट इट इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज द अदर वन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डोमिनेंट. ठीक है. ओके, so here it should be dominant. I hope this is clear. What is the meaning why a particular gene is recessive in presence of a dominant gene? So this could be, any one could be the reason. वो इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा. ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है बट वो इफ़ेक्टिव नहीं है, प्रोड्यूस कर रहा है बट वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है. क्लियर. सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ इंटरेक्शन ऑफ टू जीन्स. अभी तक हमने क्या किया था, इंटरेक्शन विद सिंगल जीन पेयर. तभी हमने दो लॉ किए, दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट वन एंड सेकेंड इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. राइट. सो नाउ वी आर taking into consideration how different gene pairs they are interacting. ठीक है, जितने भी हमारे अंदर करेक्टर्स हैं all of them are controlled by a pair of gene. ठीक है, we are talking about Mendelian inheritances. वो नॉन मेंडेलियन टॉपिक इज ओवर नाउ. So suppose I am considering a character, let it be height, let it be color of hair or color of eye, skin color. ठीक है, स्किन कलर चलो स्किप करते हैं बिकॉज दैट इज़ पॉलीजेनिक. और शेप ऑफ द नोज़ और शेप ऑफ द ईयर्स, ये सारे क्या हैं, करेक्टर्स. ठीक है, एंड एवरी कैरेक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन. So how these different pair of genes which are controlling different characters, how they are interacting with each other, so that we'll understand through next, that is dihybrid cross. ठीक है, dihybrid cross में we are taking into consideration only two different gene pairs that is controlling two different characters. इसी तरीके से अगर हम 3 पेयर ले लें तो that will be a trihybrid cross. 4 ले लेंगे तो it will be tetra. ठीक है, but we have to do only mono and dihybrid cross. So what was monohybrid cross? A cross where only a single character is being studied. But dihybrid is a cross between the two parents, and these parents they are different in 2 pair of contrasting characters. ठीक है, so it is a cross between 2 parents and those parents should have different contrasting characters. And how many characters we are considering? 2 characters, and each character is controlled by 1 pair. ठीक है, तो 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितनी पेयर्स होंगी? 2 पेयर्स. तो इसको सिंपल लैंग्वेज में यू कैन राइट डाउन दैट dihybrid cross is a genetic cross in which we are studying the inheritance pattern of 2 pairs of genes that are controlling 2 different characters simultaneously. ठीक है, we are studying the inheritance pattern. Now Mendel, he did dihybrid cross and again he used the same old model, that is pea plant. Okay, अब उस pea plant में how many characters he has chosen? that were कितनी traits थी? 7. ठीक है, हमने एक trait के साथ उसका monohybrid cross पढ़ लिया है, that is height. Now for dihybrid cross he has chosen 2 different characters. What were those characters? One was the shape of the seed. You can see one shape is बिल्कुल round, बिल्कुल full, and second one is wrinkled. जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी pea है, येलो कलर्ड pea. दिस इज़ ग्रीन pea. ये ग्रीन और येलो दोनों मिक्स किया हुआ है. तो 2 करेक्टर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं? वन इज़ द शेप ऑफ द सीड एंड सेकंड इज़ द कलर ऑफ द सीड. ठीक है, एंड आई होप यू रिमेंबर हाउ टू ड्रॉ अ क्रॉस. क्रॉस आपने वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे हमने मोनोहाइब्रिड किया था. सबसे ऊपर करेक्टर लिखोगे, 2 करेक्टर, दैट इज़ शेप एंड सेकंड इज़ द कलर ऑफ द सीड. फाइन. ओके, नाउ वी आर टेकिंग हेयर 2 parents.
first parent, it is RR. Let me tell you something. Suppose I am taking round seeds. So the shape of seed is round and the shape of seed is wrinkle. ये आपने टेबल पढ़ लिया होगा अभी तक, तो उसको लर्न करके रखना है. So first character is the seed shape. This is one character. और इसके दो ऑप्शंस हैं, राउंड एंड रिंकल. राउंड इज़ डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज़ रिसेसिव. ये क्या कर दिया? हाँ, ठीक है. सो दिस वन इज़ डोमिनेंट एंड दिस वन इज़ रिसेसिव. फाइन. सो इफ़ सपोज अ सीड इज़ राउंड, प्योर राउंड, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर. राउंड क्योंकि डोमिनेंट है तो आर ही यूज़ करेंगे. एंड सेकेंड, इफ़ द सीड इज़ रिंकल्ड इन शेप, देन उसका जीनोटाइप विल बी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. ठीक है, ये तो हो गया फॉर वन करेक्टर. सेकेंड इज़ द शेप, दिस कलर ऑफ द सीड. ठीक है. सो इफ़ दिस इज़ द सीड कलर, now seed color is second character, and again there are two options. One is yellow and one is green. Yellow color is dominant and green color is recessive. So here genotype will be YY and here will be small y small y. अब आप सोच रहे होंगे कि येलो कलर पी तो हम बहुत रेयर ही दिखता है. So the pea that we are eating is actually recessive because it is green in color. एक्चुअली जो पी का कलर डोमिनेंट है दैट इज़ येलो. ठीक है. तो अगर आप इन नाउ कर क्या रहे हैं हम? टाई हाइब्रिड क्रॉस. सो दिस इज़ वन करेक्टर, दिस इज़ सेकेंड करेक्टर, एंड वी आर कलेक्टिंग और वी आर स्टडिंग देम टुगेदर. तो लेट्स एज्यूम कि हम एक पेरेंट ले रहे हैं विच इज़ प्योरली डोमिनेंट फॉर राउंड सीड्स एंड इट इज़ हैविंग येलो कलर सीड्स. मतलब दोनों ही करेक्टर्स के लिए वो बिल्कुल डोमिनेंट है. सो फॉर राउंड उसका जीनोटाइप है RR एंड फॉर येलो उसका जीनोटाइप है YY. सो दिस इज़ द जीनोटाइप ऑफ वन पेरेंट. एंड फॉर सेकेंड पेरेंट स्मॉल r एंड स्मॉल y. सो दिस इज़ द जीनोटाइप ऑफ सेकेंड पेरेंट जिसको हम रिसेसिव ले रहे हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. अदरवाइज यू हैव डन दिस इन क्लास 10th ऑल्सो, बट यही वो मेन डिफरेंस है जहाँ बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आता है. जीनोटाइप हमेशा चूज़ होगा किसके बेसिस पे? दैट व्हाट इज़ द ट्रेट गिवन. आपने सिंबल कौन सा यूज़ करना है? जो डोमिनेंट का पहला लेटर है. ठीक है. और पेयर्स को हमेशा इकट्ठा लिखना है, ये नहीं आर के साथ वाई जोड़ दो. मतलब इफ़ यू आर राइटिंग इट लाइक दिस देन दिस इज़ रॉन्ग, because we write the two gene pairs which are controlling one character as a unit, as a pair only. ठीक है. Okay, now coming on to this again. So here a cross is between a pea plant which is having round shape of the seed and yellow color of the seed. तो round shape and color is yellow. रिंकल्ड शेप, रिंकल थोड़े थोड़े रिंकल्स दिख रहे हैं उसके ऊपर, एंड द कलर इज़ ग्रीन. तो इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y. एंड इसका जीनोटाइप है स्मॉल r एंड स्मॉल y. ठीक है. सो दीज टू आर चोजन एज पेरेंट. आप मेल फीमेल किसी को भी ले सकते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द प्लांट्स ओनली. ओके. सो व्हेन सच अ क्रॉस इज मेड, नाउ दिस वन इज RR YY, दिस इज़ स्मॉल r एंड स्मॉल y. अब बनाने हैं गैमीट्स. वही है ना सब कुछ. सो दिस इज़ द फिनोटाइप, दिस इज़ द जीनोटाइप, पेरेंट्स, देन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. और जब गैमीट फॉर्मेशन होती है देन देयर इज़ फॉलोइंग ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस इज़ नॉट क्लियर नाउ इट इज़ क्लियर. अब ये देखो, गैमीट फॉर्मेशन का मतलब होता है एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन. गैमीट्स में हमें कम्बिनेशन बनाने होते हैं. ठीक है. क्यों? बिकॉज दिस पेयर ऑफ एलील विच आर कंट्रोलिंग सेम करेक्टर दे विल सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है. एंड दिस इज़ द सेकेंड पेयर ऑफ एलील विच इज़ कंट्रोलिंग सम अनदर करेक्टर. दिस विल ऑल्सो सेग्रीगेट एट द time of gamete formation. So result, we will have the gametes like this: capital R,
एंड कैपिटल Y, ठीक है। सिमिलरली हेयर इट इज़ स्मॉल r एंड स्मॉल y, ठीक है। अब क्या गैमीट सिंगल बनेगा? नो, गैमीट विल बी 4. हाउ? दिस r combined with this y, then the first r combined with the second y, then second r with the first y, second r with the second y. लेकिन अब किसी भी r या किसी भी y को combine करो, result will be always same, that is capital R and capital Y. I know this one is not very clear, this capital R and capital Y, but किसी एक पॉइंट पर अगर आपको दिख जाता है, हाँ, then it is same every time. So capital R and capital Y, so these are the gametes which will be formed by such type of parent, and this will be the type of gamete formed by this parent. Number of gametes will be 4 and type of gamete will be same, single, ठीक है। अब गैमीट बन गए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो गया, देन विल बी फर्टिलाइजेशन। इसको आप इसके साथ जब क्रॉस करोगे, क्या बोला था मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट अ पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ एलील विच आर कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, दे विल सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड द पेयर कंडीशन विल बी अगेन रीस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर भी एक पेयर ही बनेगा, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग सेम करेक्टर, तो उन दोनों को हम इकट्ठे लिखेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इज इट क्लियर? सो दिस इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। फाइन। F1 में जितने भी बनेंगे, 4 गैमीट्स इसके, 4 गैमीट्स इसके, 4 into 4 विल बी 16, ठीक है। तो इसमें 16 कम्बिनेशन बनेंगे, बट वो सारे 16 बनेंगे एक ही जैसे, तो वाई टू डू सो मच ऑफ एफर्ट, सो वी आर राइटिंग जस्ट 1 और यू कैन एट द मोस्ट राइट 2, ठीक है। सो इट इज़ अ हेट्रोजाइगस फॉर राउंड एंड हेट्रोजाइगस फॉर येलो, बट ओवरऑल फिनोटाइप क्या होगा, कैसा बनेगा ये सीड, इट विल बी राउंड एंड येलो। सो दैट मीन्स दिस F1 जनरेशन इज एक्चुअली रिजेंबलिंग द डोमिनेंट पेरेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब F1 के बाद वी गो फॉर F2 एंड F2 इज़ मेड बाय सेल्फिंग F1। इफ़ दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ F1, इसी के साथ सेल्फिंग कर दो। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हेन दिस सच इज़ द टाइप ऑफ पेरेंट, व्हाट विल बी द गैमीट्स, व्हाट आर द गैमीट्स ऑफ सच अ पेरेंट। यहाँ आपको याद रखनी है बात फिर से, एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन, ठीक है। नाउ कम्बिनेशन इज कैपिटल आर विद कैपिटल वाई, पहला कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर विद स्मॉल वाई, सेकेंड कॉम्बिनेशन, स्मॉल आर विद कैपिटल वाई, थर्ड कॉम्बिनेशन, स्मॉल आर विद स्मॉल वाई, देन द फोर्थ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो गैमीट बनाते टाइम हमेशा एक चीज़ याद रखो, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। फाइन। सो सिमिलरली देर इज़ द सेकेंड F1 जनरेशन का मेंबर, उसके अगर गैमीट बनेंगे तो वो इसके जैसे ही बनेंगे। सो नाउ वी आर अगेन हैविंग 4 गैमीट्स, पहले भी 4 ही थे, बट ऑल ऑफ देम वर ऑफ सेम काइंड, बट हेयर देयर आर 4 गैमीट्स and all the 4 gametes are of different type. Clear? अब gametes बनाने का एक और easy method मैं आपको बता देती हूँ, so that you can never forget it. Okay, suppose I am having this type of parent, मुझे gamete बनाना है। gamete बनाने के लिए अब ये तो पता है कि ये दोनों हैं अलग अलग पेयर्स, तो आप एक पेयर को सेपरेट कर दो, कैपिटल आर और स्मॉल आर मैंने सेपरेट कर दिया। दूसरी पेयर को इसके सामने लिख देना है ऐसे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो दिस विल बी द फर्स्ट गैमीट, दिस विल बी द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इजी। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये भी हो सकता है पेरेंट, ठीक है। तो अब इसका गैमीट कैसे बनाएंगे, फिर से सेम रूल,
एक पेयर को सेपरेट कर दो, कोई भी पेयर सेपरेट कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो. सो आई एम सेपरेटिंग अगेन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. फिर वाई एंड वाई, 2 बार वाई लिखो, 1 बार वाई लिखो, मतलब एक ही निकलेगा. मतलब इसमें से भी 2 गैमीट बनेंगे, बोथ ऑफ देम विल बी कैपिटल आर वाई, एंड इसमें से बनेंगे स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई. ठीक है. सो टोटल देयर विल बी 4 गैमीट्स, बट दे विल बी ऑफ 2 टाइप्स. इट्स वेरी ईजी टू मेक गैमीट्स एंड वेरी क्रिटिकल ऑल्सो, क्योंकि गैमीट्स अगर आपने गलत चूज़ किए सो डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. एक और मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जैसे कि व्हाट दे विल डू मोस्टली, मैं ये नहीं कह रही सारे, वो क्या करेंगे, अब इसके गैमीट बनाने हैं तो ऐसे गैमीट बनाएंगे कि ये 2 गैमीट बन गए. दिस इज़ टोटली रॉन्ग, बिकॉज गैमीट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होना. That a particular gene pair which is controlling some character, it has to be separated out, capital R, small r. Similarly, the second gene pair, this should also separate out, capital Y, small capital Y. ठीक है. अब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट मेथड. वेयर इट इज़, किधर गया, यही वाला, दैट सेपरेट वन, एनी वन एलील को, एनी वन पेयर को, सपोज कैपिटल बी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कुछ भी लेके देख सकते हो. तो इन दोनों को सेपरेट कर लो, ये दोनों आगे लिख दो, या इन दोनों को सेपरेट कर दो, ये दोनों आगे लिख लो. 4 कम्बिनेशन बन रहे हैं तो 4 बनाओ, चाहे वो चारों सेम बनते हो चाहे डिफरेंट, बिकॉज दैट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अब दोबारा से मैं शुरू कर रही हूँ. वी आर टेकिंग 2 पेरेंट्स. One is purely dominant for the characters round and yellow, and second one is purely recessive for the character small r and small y. After following law of segregation, it will form gamete. It will form 4 gametes, all of them of same type, r, capital RY, and here it will form small, in this case it will form small ry. ठीक है. Combination के बाद this will form a heterozygous for both the characters, so phenotype will be dominant, round and yellow. After doing selfing of F1, we are getting 4 different types of gametes from each parent. ठीक है. both the parents are producing same gametes, no doubt, लेकिन एक पेरेंट से हमें कितने गैमेट मिल रहे हैं, 4, तो दूसरे से भी कितने मिल रहे हैं, 4. ठीक है. और चारों के चारों gametes they are different from each other, because gamete means every possible combination, right? So when such a generation will have a cross, so this is what you get overall. so फिर से एक पनेट स्क्वायर है. अब सपोज़ यहाँ लाइन लगा के हम बना दें मेल फीमेल. पहला गैमीट कैपिटल आर वाई, एक पेरेंट का, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. ऐसे ही गैमीट्स दूसरे पेरेंट के हैं. ठीक है. ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, कंफ्यूज नहीं करना. ओके. अब इसके बाद पॉसिबल कम्बिनेशन बना देना. इस बॉक्स में क्या आएगा, इसका और इसका कम्बिनेशन. इस बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ से और यहाँ से कम्बिनेशन. ठीक है. सो इसी तरीके से यू कैन फिल द कंप्लीट बॉक्स. सो इफ़ वी आर टेकिंग 4 gametes on one side, 4 gametes on another, then the offsprings formed will be 16. ठीक है. और मोनोहाइब्रिड में क्या था, 2 इधर थे, 2 इधर थे, और ऑफस्प्रिंग कितने थे, 4. सो दैट मीन्स व्हेन वी आर स्टडिंग 1 character, then the number of gametes involved are 4, and offspring formed are, number of gametes formed from the parent is 2, and offspring formed is 4. When we are taking 2 characters simultaneously, the number of gametes formed is 4 and combination is 16. ठीक है. ओके. अब इसको लर्न कैसे करना है, इसका रट्टा नहीं मारना है. ठीक है. इसको जैसे ही मैट्रिसेस करते हैं, ठीक है, मैथ्स का थोड़ा सा, और नहीं तो सिंपल ही है. इफ़ दिस बॉक्स रिक्वायर्स व्हाट शुड बी द जीनोटाइप,
तो यहाँ से क्या ले लिया, स्मॉल आर। ये नहीं लिखना कि स्मॉल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, रिमेंबर यू हैव टू राइट द पेयर टुगेदर। तो स्मॉल आर इधर से, स्मॉल आर इधर से लिख दिया, कैपिटल वाई इधर से, स्मॉल वाई इधर से लिख दिया। और ये भी एक चीज़ है कि अगर तो उसमें कोई डोमिनेंट है तो डोमिनेंट को पहले लिखो और रिसेसिव को बाद में, जैसे कि ये। सो दिस विल बी द टाइप ऑफ कम्बिनेशंस, टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स। अब इन 16 ऑफस्प्रिंग्स में बहुत सारे ऐसे होंगे जो पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। एज यू कैन सी, हम इधर ही इंटरप्रेट कर लेते हैं। दिस इज़ कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, तो व्हाट विल बी द फिनोटाइप, राउंड एंड येलो। इसका मतलब हर वो कम्बिनेशन जिसमें एटलीस्ट एक आर कैपिटल है और एक वाई कैपिटल है, वो सारे क्या बनेंगे, राउंड एंड येलो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। अब ये नहीं करना कि 2 वाई हैं कैपिटल तो ज़्यादा येलो, वो नहीं कर रहे, हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस ही कर रहे हैं। देन अगेन राउंड एंड येलो, कैपिटल आर 2, एक वाई कैपिटल है, दूसरा तो रिसेसिव ही है, बट स्टिल राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड एंड राउंड, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, बोथ द आर राउंड कैपिटल, तो ये बनेगा तो राउंड, लेकिन दोनों वाई क्या है, स्मॉल। और जब 2 वाई स्मॉल होते हैं देन द फिनोटाइप इज़ ग्रीन, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम हेयर कैपिटल आर, फ्रॉम हेयर स्मॉल आर, अगेन बोथ द वाई they are small, so again it is round and green. Here also both are small, here r is capital but y is small, तो जब आप इसको और इसको combine करोगे again round and yellow, ठीक है। now this one both the r they are small but दोनों जो y हैं they are capital, ठीक है। सो इसको हम येलो इसलिए ड्रॉ नहीं किया तो क्योंकि ये इसके साथ मिक्स हो जाता, ठीक है, तो इसको वाइट कलर ऐसे ही दे दिया। बट दिस इज़ रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल क्यों, क्योंकि दोनों आर स्मॉल हैं, किसी में भी आपको आर कैपिटल नहीं दिखेगा, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, रिंकल। और तीनों में किसी में दोनों वाई और किसी में सिंगल वाई कैपिटल है, सो दीज 3 कॉम्बिनेशंस आर रिंकल्ड एंड येलो। एंड द लास्ट वन, दोनों स्मॉल, सो दिस इज़ रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो इसमें से क्या पता चल रहा है कि दीज 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे आर राउंड एंड येलो जस्ट लाइक वन पेरेंट। F1 क्या था, राउंड एंड येलो, और F1 के पेरेंट्स कैसे थे, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। यहीं से स्टार्ट किया था ना। सी देखो, ये F1 था, ये खुद क्या है, राउंड येलो, इसके पेरेंट्स कैसे हैं, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब व्हेन दिस इज़ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो ये कम्बिनेशन पहले भी है जनरेशन में, ये कम्बिनेशन पहले भी था पेरेंट में, बट दीज 6 कम्बिनेशंस जहाँ राउंड ग्रीन के साथ और रिंकल येलो के साथ जा रहा है, दिस वॉज नॉट प्रेजेंट इन द जनरेशन बिफोर, ना F1 में ना F1 के पेरेंट्स में। तो ये कहाँ से आया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यू कम्बिनेशंस, दैट इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेशन। यू रिमेंबर क्रॉसिंग ओवर दैट वी हैव डन इन क्लास 11th। सो ये किसका रिजल्ट है, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन, फाइन। ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू राइट the result of dihybrid cross. So when we observe F2 generation, Mendel he found that yellow and green color they segregated as the same 3:1 ratio. Wrinkle and round also segregated as 3:1 ratio. So overall how we are dividing this ratio phenotypically. So what is the phenotypic ratio? 9:3:3:1, ठीक है। 9 ऐसे, ये याद रखो, 9:3:3:1। हाउ 9 कम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि राउंड और येलो है,
राउंड येलो कौन होगा? जिसमें मिनिमम एक आर और मिनिमम एक वाई कैपिटल, ठीक है। देन देर आर 3 कम्बिनेशंस जिसमें आर कैपिटल है लेकिन वाई स्मॉल है, सो राउंड एंड ग्रीन, तो 9:3। एंड 3 न्यू कम्बिनेशंस जिसमें आर स्मॉल है लेकिन वाई कैपिटल है, दैट इज रिंकल येलो, एंड दिस इज द 1, सो 9:3:3:1। अब पहला वाला 3 हमने इसको मानना है या इसको मानना है, वो हमारी इच्छा, ठीक है। बेटर है इसको ही मानो, ठीक। एक और इजी वे बताती हूँ हाउ टू कैलकुलेट 9:3:3:1। इसी को चेक करो। 9 ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक आर और एक वाई कैपिटल होना चाहिए, ठीक। 3 ऐसे हैं जिसमें आर कैपिटल है, वाई स्मॉल है। 3 ऐसे हैं जिसमें आर स्मॉल है, वाई कैपिटल है, और एक ऐसा है जिसमें दोनों स्मॉल है। इजी, ये मेरा अलग ही मेथड है, जस्ट टू मेक स्टूडेंट्स रिमाइंड कि कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको फाइंड आउट कैसे करना है कि कैसे 9 है। क्लियर? सो ये जो रेशो अभी हमने की है दैट इज़ द फिनोटिपिक रेशो, कि दिखने में वो राउंड येलो थे, दिखने में वो राउंड ग्रीन थे, रिंकल येलो थे या रिंकल्ड ग्रीन थे, बट स्टिल दे आर डिफरेंट एट द जीनोटाइप लेवल ऑल्सो। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, लेकिन उनका जीनोटाइप तो सेम नहीं है ना। सो व्हाट इज़ द जीनोटिपिक रेशो फॉर अ डाइहाइब्रिड क्रॉस? इट कम्स आउट टू बी a little bit elaborated, that is 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। अब इसको लर्न करना है या सीखना है, इट्स अप टू यू। देखो पहले तो सिंपल ट्रिक 1:1, ये किसकी जीनोटिपिक रेशो थी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की थी ना, 1:2:1। उसको कर दो डबल, 2:4:2, इसी को डबल कर दिया, 1:1, 2:4:2, एंड देन अगेन रिपीट 1:1। सो दिस इज़ द जीनोटिपिक रेशो, ठीक है, फाइन। और इसको कभी आपको निकालना है टेबल में से, इट इज़ वेरी इजी अगेन। सो 1, अब आपने ये टेबल इससे ऐसे नीचे की तरफ पढ़ना है, यहाँ से इस तरफ। वो कब पढ़ना है? जब आपने गैमीट्स इसी अरेंजमेंट में लिखे हैं तो, अदरवाइज़ ये सेम नहीं आएगा फिर। सो 1 वेयर बोथ आर एंड बोथ वाई कैपिटल, 2 वेयर बोथ द आर कैपिटल बट 1 वाई एंड इज कैपिटल, 1 वाई इज स्मॉल, सो 1:2:1, ठीक है। बोथ आर कैपिटल, बोथ वाई स्मॉल। देन अब ये दोनों बच गए, ये देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, सो 2:4, ये सारे सेम है, ठीक है। 2:4:2, ये दोनों सेम है। देन 1:2:1, दोबारा पता नहीं लिखा जाएगा कि नहीं, दिस इज़ 1:2:1। देन दिस वन एंड दिस वन, ये वाला और ये वाला, 2:4:2, देन 1:2:1। I hope this one is clear to all of you. Okay, so at last how we can write down that what is the interpretation or what is the third law of Mendel, yeah, inheritance. So the third law of inheritance that can be explained only from a dihybrid cross, not from monohybrid. It is law of independent assortment. Independent का मतलब you know, free. Assortment का मतलब होता है separation, ठीक है। assortment का मतलब not separation exactly, कि when we give something in different slots, ठीक है, किसी भी चीज़ का अलग होना। अब when more than one pair of characters are involved in a cross,
देन द फैक्टर्स मतलब जीन पेयर्स दे गेट इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटेड फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपल भाषा में व्हाट यू विल राइट, हम क्या कर रहे थे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसी के ऊपर मैं समझाती हूँ आपको पहले तो। ओके फाइन, इसी में ही समझ आ जाएगा आपको। सी इफ़ दिस इज़ अ जीन पेयर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर जब सेपरेट होते हैं, इस जीन पेयर की सेपरेशन is totally independent from the separation of another gene pair which is controlling some another character. So this is the third law. So how you are going to write it down, that the third law, which is law of independent assortment, it states that two pairs of genes which are controlling two different characters, they will separate or segregate independently from each other at the time of gamete formation. Clear? यही वजह है that if R is getting separated and it is combining with capital Y, so there is other possibility that this R can also combine with the small y. अब R और R separate हुआ है या नहीं, इससे Y को कोई लेना देना नहीं है. So this is what is law of independent assortment is all about, and that can be explained by this dihybrid cross. इसके थ्रू भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. सपोज वी आर टेकिंग कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कोई दो जीन पेयर्स हमने ले लिए, ठीक है, इधर भी ले लिया, ठीक. अब पहला जीन पेयर है ए, वो सेपरेट हो गया. दूसरा जीन पेयर कौन है, कैपिटल बी स्मॉल बी, वो भी सेपरेट हो गया, ठीक है. अब इस केस में पहला जीन पेयर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी. नाउ लास्ट में फ्रॉम दिस जीन पेयर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है. जब भी हम किसी दो डिफरेंट जीन पेयर्स की बात करते हैं जो कि डिफरेंट करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो उन दोनों की सेपरेशन, उन दोनों का आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिफरेंट जीन पेयर्स विच आर कंट्रोलिंग डिफरेंट करेक्टर्स, दे आर फॉलोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एक दूसरे की सेपरेशन पे वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हमारे पास नए कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, ठीक है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. अगर फिर भी ना समझ आया हो, यू कैन अगेन कॉन्टैक्ट मी.